नमस्कार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में जो बयान दिया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। चर्चा कह लीजिए या फिर तारीफ कह लीजिए, सोशल मीडिया पर एक तरफा राहुल गांधी की प्रशंसा की जा रही है। यूजर्स कह रहे हैं कि आज से पहले राहुल को ना इस अंदाज में देखा और ना ऐसे तेवर में। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो राहुल गांधी की तुलना पीएम मोदी के उस वाक्य से कर रहे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर यानी बिना टीपी मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल नहीं पाए थे। राहुल गांधी ने लगभग 45 मिनट सदन में बोलकर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की तरफ से सबसे पहले बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर रोजगार के मौके खत्म करने, गरीबों और अमीरों के बीच असमानता की खाई बढ़ाने, छोटे और मझोले उद्योगों को नष्ट करने और विदेशी नीति में रणनीतिक गलतियां करने सहित एक के बाद एक कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि आज देश में दो हिंदुस्तान बन रही है, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपको दिखाते हैं कैसे लोग सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जब आप दिल से बोलते हैं तब आपको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं होती। एक और यूजर ने लिखा, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर स्पेंट 15 years in jail. His grandmother was shot 32 bullets. His father was blown to pieces. Yet he is fearless. He is Rahul Gandhi. एक और यूजर ने लिखा, excellent speech without teleprompter. एक और यूजर ने लिखा, what a speech राहुल गांधी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, a leader who has a vision doesn't need a prompting machine. एक दूसरे यूजर ने लिखा, what a 47-minute speech without a teleprompter, is it even possible? Is it some sorcery? Without staring daggers at the guy running the teleprompter, how? एक और यूजर ने लिखा, hero of the parliament. एक और यूजर ने पुष्पा अंदाज में मोदी को फ्लावर बता दिया और राहुल गांधी को फायर तक कह दिया। कुछ इसी तरह से ट्विटर पर राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं और उनके साथ साथ टेलीप्रॉम्प्टर भी ट्रेंड कर रहा है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। और जाते जाते आपको सुनवाते हैं राहुल ने सदन में क्या कुछ कहा था। श्री राहुल गांधी जी, Thank you, Chairman sir, for allowing me to speak on the presidential address. Thank you for allowing me to speak. I felt that the presidential address should have been a strategic address, an address that spoke to India about where we are and where we should be going. What are the challenges we are facing? What are the difficulties we are facing? And what is the potential direction in which we can go? Unfortunately, the presidential address was a long list of things that the government claims to have done, but didn't really contain the deeper strategic issues that we would have liked to see. Also, the presidential address didn't touch a couple of central challenges facing our country. And that's what I would like to discuss today. To me, it seemed that the presidential address was a list of bureaucratic ideas instead of a strategic vision. It looked to me as if it had been constructed not by a vision of leadership, but by a group of bureaucrats who had simply to put something down on paper. So what did the presidential address miss? What did the presidential address not speak about?
what did the presidential address hide from the people of India? I think there are three fundamental things that were not spoken about in the presidential address. The first, and what I consider to be the most important, is the idea that there are now two Indias. There is now no longer one India. There are two Indias. One India is for the extremely rich people, for those who have immense wealth, for those who have immense power, for those who do not need a job, for those who do not need water connections, electricity connections, but for those who control the heartbeat of the country. And then another India. Another India. आपके जब नेता बोलेंगे ना, फिर हम भी वो खड़े होंगे उस समय। एक बात करने दीजिए। ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस की एक गरिमा होते हैं। जब आपके प्रवक्ता बोले थे, कोई भी नहीं खड़ा हुआ यहाँ तक। इस गरिमा को मद्देनजर ये चर्चा करना चाहिए। नेता सत्ता पक्ष के भी है, नेता विपक्ष के भी है। हमारे नेता भी बोल रहे हैं, समय हमें दिया गया, इस सूची में हम बोल रहे हैं। अगर आप ये चाहें कि हमारे नेता को बोलने में बाधा डाले जाए तो मौका हमारे भी आएंगे। आपको नेता जब यहाँ बोलने उठेंगे, हम भी इस तरह की बाधा डालेंगे। ये आपको समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम अपना बात रखना चाहते हैं, अधिकार है हमारा। प्लीज नो प्लीज बैठिए, बोलने सभी अध्यक्ष महोदय। And for my friends in the government, I want to make it clear that the spirit of what I'm saying is not one of criticism. The spirit with which I speak is one of discomfort with the state of our country. And the spirit with which I speak is one where I am worried about what is happening to the country. So you must not take it as a criticism. Take it as a citizen of the country who is concerned about what is going on. धन्यवाद। तो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। आप बात करते हो रोजगार देने की। 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए,
वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को आप भी पहचानते हो, क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। कितना रोजगार पैदा किया गया है, किस प्रकार किया गया है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, और आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख के कहेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा कैसे हुई? ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। 7 की कर रहा हूं, मैं 60 की भी करूंगा। मैं अपने भाषण में अंत में 60 साल की बात करूंगा आपको खुश करने के लिए। आप ठहर जाइए। मगर असंगठित जो सेक्टर है उस पर आपने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, गलत जीएसटी और कोरोना के समय जो सपोर्ट उनको देना था आपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घटी है और वो तेजी से गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं।